everyone, myself Megha Kataria. I read in class 9th in AVM Shastri School, Sujangarh. My topic is Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan was launched by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. It was launched to promote the cleanliness in the society. Till now, it has successfully covered 4,041 cities across India. It is a campaign launched by the Government of India. The ultimate objective is to maintain healthy and clean environment. Swachh Bharat Abhiyan is also known as Clean India Mission and Clean India Drive. It is a national campaign in which all the states have part of this mission. Thank you. Next student. Myself Priya Keri. I am a student of class 9 from AVM Shastri, Sujangarh. Today I express my views on COVID-19. COVID-19 was first detected in China and spread to the entire world within months. There are so many reasons why it became pandemic. Beijing, a 56 years old female shrimp seller, it is the originating point of COVID-19. COVID-19 was so dangerous virus. It is so risky. Focus on communication, good health behavior such as covering cups and sneezes with the elbow. And she now more how to avoid this risk. Please stay home. Thank you. I call on stage Deepika Mali, student of class 8, speak on Beti Bachao, Beti Padhao. Hi everyone, myself Deepika Mal. I am a student of class 8 in AVM Shastri School. I would like to introduce the topic of Beti Bachao, Beti Padhao. Thanks my teacher for giving me this opportunity. Beti Bachao, Beti Padhao is a joint initiative by 3 ministries of the Government of India. Its objective is to prevent the gender-based sexualization and ensuring the protection of a girl child. It also aims at the education of a girl child and participation of women on global forums. The child sex ratio CSR shows the women disempowerment. The decline in the CSR shows the women disempowerment. The scheme expects to decrease the cases of female foeticide. Thanks all of you. Have a nice day. Nice to meet you. I call on stage गायत्री बागड़ी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसे कि बच्चों ने अपना ये भी एक स्पीच, अपना एक हुनर कि इंग्लिश वोकेबलरी का जो अपना हुनर है वो बताया। अब हिंदी बेटियों की हमारे समाज में क्या स्थान है, किस तरीके का हुनर है और किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में जो है कविता पोयम प्रस्तुत करेंगी। कम ऑन स्टेज गायत्री बागड़ी। माई सेल्फ गायत्री बागड़ी। हाँ मैं एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। लेकिन ये समाज और इस समाज की संकीर्ण मानसिकता और इसी मानसिकता के शिकार यहाँ के लोग कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरी लड़की होने पर। इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। क्या इस समाज को सुनाई नहीं देती उस नन्ही सी, उस मासूम सी बच्ची की चीखें जो आज भी अपनी माँ के गर्भ में रो रो कर चीख चीख कर कहती है कि माँ मुझे भी बाहर आना है, मुझे भी इस दुनिया को देखना है। क्या इस समाज को उस बच्ची की पीड़ा नजर नहीं आती जो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे इस दुनिया को देखना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे इस देश का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उन लड़कियों की आवाजें नजर नहीं आती जिनके साथ रोज रोज बलात्कार जैसा गुनाह किया जाता है? क्या इस समाज को उन लड़कियों की आवाजें नजर नहीं आती जिसके सिर्फ ना कहने पर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया जाता है? क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जिसके सिर्फ ना कहने से उसके मुंह पर तेजाब डाल दिया जाता है? क्या इस समाज को उन औरतों की पीड़ा नजर नहीं आती जिनको सिर्फ तलाक का सहारा लिए घूमना पड़ता है? क्या इस समाज को उस औरत की आवाज नजर नहीं आती जिसको न्याय के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है? कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है, क्योंकि समाज की तो ये पुरानी आदत है ये बताने की कि तुम लड़की हो, तुम औरत हो। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है, सवाल तो भी ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। इसके जवाब में मैं कहूंगी कि हाँ शायद मैं कमजोर थी पर अब ना रहूंगी, शायद मैं कमजोर थी पर अब ना रहूंगी, अपनी आवाज के साथ अपने हक के लिए लड़ूंगी। क्या मैं कल थी, मैं आज हूँ, मैं कल भी रहूंगी, अपने वर्षों से की पहचान बन आकार बनूंगी। जय माँ भारती। यह जो प्रदर्शनी
भैया बहनों ने अपने आचार्यों के सहयोग से आपके सामने प्रदर्शित की है, उस प्रदर्शनी दिखाने से पहले इस प्रकार के 8 अन्य कार्यक्रम जो बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, बच्चों को अपना मंच पर आकर बोलने के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया, उनमें अंताक्षरी का भी विशेष कार्यक्रम, स्पोकन में हर बालक बोले, अंग्रेजी स्पोकन करे, हिंदी वार्तालाप करे, संस्कृत वार्तालाप करे, ये समान रूप से इस सत्र में चलाया गया। ये 9वां कार्यक्रम है और इसके बाद भी लगातार चाहे कोविड या अन्य विभिन्न प्रकार की जो कठिनाई आई, उन कठिनाइयों का भी आचार्य वर्ग ने एक अभिभावकों के सहयोग से बहुत ही अच्छे ढंग से सबका सहयोग लेते हुए उसको पार किया। और जो अपने इस सत्र का जो पाठ्यक्रम है, अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व लगभग कक्षाओं का पूरा हो चुका और अब जो चल रहा है वो दौरान कार्य है, या किसी भी बालक जो नहीं आया उसका कार्य दौरान करना, ये सारी गतिविधियां इस वर्ष चली है। और इसमें सबसे पहले मैं अभिभावकों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी अभिभावकों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और भैया बहनों को जहां जिसकी जो आवश्यकता हुई उसकी पूर्ति की। पुनः मैं एक बार सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। जो माताएं बहनें अभिभावक अन्य नागरिकगण पधारे हैं, उनसे मैं सुझाव लेना चाहूंगा कि आपको ये कैसा लगा और आगामी हम कोई आपके सुझाव से और भी कोई अच्छा कार्यक्रम करें तो उसमें आपकी सहभागिता तो रहेगी और साथ ही आपका जो सहयोग और आपके सुझाव, उन सबको सम्मिलित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं पुनः आप सब पधारे, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं आपसे अभी जो भैया बहन बोले इस बारे में आपके कोई सुझाव हो तो जरूर, आपको कैसा लगा तो इनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन। परिवार और बेटियों और बच्चों का आभार जिन्होंने मुझे मॉडल एक्टिविटी में इतना शानदार कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बच्चों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है अपने क्षेत्र में, हमने अलग अलग तरीके से जो ज्वालामुखी बनाया है और अभी बच्चों ने कई मॉडल जो बनाए हैं, वाकई तारीफ काबिल है। और हमारी बेटियों ने तो इतना अच्छा व्यंजन बनाया है, कन्हैया लड़काना की ड्रेसेस जो बनाई है बहुत अच्छी बनाई है और 1 घंटा में इतनी अच्छी ड्रेस बनाई है। बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बाकी बेटियां जो होती है वो छोटे बचपन में कुछ सीखने की ललक होती है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे है, बेटे हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी मैं कि जो व्यंजन बच्चों ने बनाया है वो हम जो गृहिणियों के वो जरूरी होते हैं, उनको इस काम में भी निपुण होना। इन बच्चियों ने जो व्यंजन बनाया है, मैंने सारे चर्चा के देखे, घर से खाना खा के आई, फिर भी विवश हो गई चखने के लिए। वाकई बहुत अच्छे व्यंजन बनाए हैं बच्चों ने और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो किया है बच्चों ने, इनके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इनसे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमें भी बढ़ने प्रेरणा मिलेगी। हमारे भी 2 बच्चे यहाँ ऐसे ही पढ़ करके और आदर्श विद्या मंदिर से शिक्षा ग्रहण की है और आदर्श विद्या मंदिर एक अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी शिक्षा का क्षेत्र है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को आदर्श विद्या मंदिर में भेजें। यहाँ से बच्चे सुसंस्कारित होकर के हमारे परिवार को और आने वाले देश के नए भविष्य होंगे। धन्यवाद। का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ माननीय प्रबंध समिति अध्यक्ष महोदय और मेरे सहभागी भगिनी बंधु, आप सभी का यहाँ अभिनंदन है। और बच्चों की इतनी क्रिएटिविटी देख के हम सब भी उत्साह से भर गए हैं। शिक्षा तब पूर्ण होती है जब जानकारी के साथ उसको आचरण में डाला जाए और इससे बढ़िया सुझाव कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपने प्रधानाचार्य पवन जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को शुरू किया और बनाए रखिए। एक छोटा सा सुझाव ये है कि अपन जो भाषा ज्ञान के लिए जो आपने कार्यक्रम रखे हैं उसमें आप भाषा सप्ताह के तौर पे कन्वर्सेशन का रख सकते हैं कि ये इस सप्ताह जो है वो संस्कृत वार्तालाप आपस में करेंगे और इस सप्ताह में अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे। एक सप्ताह आप महीने में डिवाइड कर सकते हैं तो 4 भाषाएं हमारी एक साथ सीखने में चल सकती है। धन्यवाद सभी।
अंग्रेजी का, हिंदी का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और उनकी एक योजना है स्किल इंडिया। इसके अंतर्गत लोगों को, बच्चों को शिक्षा परक, ऐसी रोजगार परक शिक्षा दी जाए जिससे कि वो नौकरी की तरफ नहीं देके अपने रोजगार खुद से सर्जित कर सके। और इसके तहत ये जो आज का कार्यक्रम देखा है ये बहुत ही उपयोगी है। और मोदी जी ने इसके लिए मुद्रा योजना शुरू की है, जिसमें शिशु लोन 50,000 तक का, और उसके बाद किशोर लोन 5 लाख रुपए तक का, और तरुण लोन 10 लाख रुपए तक का मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है। अपने ये जो स्किल्स है, जो हुनर आप सीख रहे हैं, इससे आगे चलकर आप अपना बहुत बड़ा रोजगार खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसलिए ये जो शिक्षा दी जा रही है, रोजगार पर शिक्षा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, उसको सारे को कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखे तो संभव नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी दी जा सके। इसलिए ये जो आप स्किल सीख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और इसमें मैं थोड़ा सा ये सुझाव दे रहा हूं, अभी कुछ बच्चियों ने अपना उद्बोधन दिया हमारे स्वच्छ भारत मिशन पे, दूसरी योजनाओं पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि बोलने में बहुत बढ़िया उन्होंने तैयारी की है और बहुत बढ़िया बोली है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपसी, जैसे बताया वीणा जी ने, कन्वर्सेशन आपस में होना तो बोलने का लहजा सुधर जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं रट के आया हूं, इसलिए इसमें लहजा होना जरूरी है। हमने किसी से बात करते, मैं स्टेशन गया, स्टेशन पर गाड़ी पड़ी, मैंने टिकट कटाई, मैं चढ़ गया, ऐसे नहीं बोला जाता है। मेरे को रतनगढ़ जाना था तो मैं ऑटो से लेकर स्टेशन पहुंचा, फिर मैंने टिकट खिड़की पर मैं गया, वहां से मैंने रतनगढ़ की टिकट ली, फिर मैंने जोधपुर रेवाड़ी ट्रेन में सवार हुआ, मैं रतनगढ़ पहुंचा। ये मतलब धीरे धीरे ऐसे बोलो आप अपनी सेंटेंस को कि उससे ऐसा लगे कि ये लहजे से ये पूरी तैयारी आपकी वही है। बोलने का लहजा अगर सुधर जाएगा तो ये नहीं लगेगा कि चलो 4 लाइन रट के आगे बोलने ये लगेगा कि वास्तव में बच्चा इंग्लिश में बहुत बढ़िया ढंग से बात कर सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा लहजा सुधारने की जरूरत है, और तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैंने तो इतना सुझाव आपको दिया, आपकी ये सारी तैयारियां मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये हमने मिठाइयों का भी जायका लिया, बच्चों ने इतनी सुंदर मिठाइयां बनाई है, बाजार के हलवाई भी फेल है शायद। कि आप वास्तव में तैयारी करें और ज्यादा हुनरमंद बने, ताकि आगे चलकर आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। और मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहे, और किसी से भी मिले तो हंसकर खिलकर बात करें। खिल के बात करने का एक बात ही दूसरी हो जाती है कि अगला भी खुश हो जाता है। बात करने का लहजा, हंसी, ये बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने दिल में हिंदुस्तान की, राष्ट्र की भावना रखनी जरूरी है। इसलिए आप सभी से मैं तो ये कहूंगा कि कर्म करोगे फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल निकलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल निकलेगा। इसलिए आप निश्चित रूप से मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत से हर आदमी आगे बढ़ सकता है। आप अपनी हुनर को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें, आप आगे जाकर बहुत ज्यादा तरक्की करें, ऐसी मेरी भावना है। मैं तो इतना ही कहता हूं कि अपने होठों पर एक मधुर मुस्कान रखना, दिल में खुशी का एक दालान रखना, लेकिन दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखना। जय भारत। सम्मानित मंच और विद्यालय प्रांगण के इस हॉल में पधारे सभी महानुभावों को मैं व्यवस्थापक होने के नाते सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से जो कला आपने दिखाई है, ये शुरुआती है। आप इनका जो धीरे धीरे इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ये थोड़ा विस्तृत रूप में आ जाएंगे। अभी जो बच्चे इंग्लिश टॉकिंग कर रहे थे, अपने एक समाज में थोड़ी सी क्या है कि कईयों की भावना हो रखी है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, ये आदर्श विद्या मंदिर है, ये हिंदी मीडियम स्कूल है। लोग क्या है कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम की तरफ थोड़ा रुझान करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनसे मिला लो, बात करवा लो, अपने बच्चे 21 रहेंगे। और आज जो भी ऊंचे पोस्टों पर CA हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो,
चाहे IPS हो, IAS हो, बने तो अपने स्कूल के बच्चे बने, हिंदी में स्कूल में पढ़ के गए हैं वो। पहले लोग कहते थे कि इंजीनियर बनेगा, IIT में सिलेक्शन होगा तो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से होगा। यहाँ हर साल कितने बच्चे IIT में जा रहे हैं। आज कल ही रिजल्ट आया, आपने CA का देखा होगा, तीनों बच्चे सुजानगढ़ के थे, तीनों ये बच्चे आपने आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े हुए थे। तो कितनी खुशी की बात है। और रही बात भाई साहब, ऊँची भाई साहब ने बात बताई कि ये जो हाथ का काम है ये भारत सरकार भी ध्यान दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना जो बड़ा स्कूल है, मैं पहले वहाँ व्यवस्थापक था, उस टाइम हमारे पास 20 लाख रुपए आए थे और हमने वहाँ पर एक लैब बनाई है। लैब बिल्कुल एकदम विज्ञान के तहत और पूरी गणित के तरह इस तरह से बनी हुई है और 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे वहाँ सारा काम सीखेंगे। मशीनरी भी आ गई है उसमें। मैं एक दो बात बताता हूँ आपको। जैसे ड्रोन आजकल क्या है, ड्रोन का ज्यादा चलन है, तो ड्रोन बनाना और ड्रोन उड़ाना ये छोटे छोटे बच्चे बनाएंगे। ड्रोन वो स्कूल में बढ़ेंगे अपने। कोविड की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ कि स्कूलें बंद हो गई तो प्रॉपर बच्चों को ध्यान दिया नहीं जा सका, इसलिए रह गए पीछे। लैब बन गए, तैयार होगी, 2 वर्ष हो गए और 20 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिए। और अब हो सकता है कि अपने जो छोटी छोटी स्कूलें और हैं उनका भी प्रधानमंत्री जी देंगे। हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के मत पढ़ो। ये जो बच्चे अभी इंग्लिश में बोल रही थी, मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि हम एक क्लास रोजाना एक इंग्लिश टॉकिंग की लेते हैं, स्पोकन की लेते हैं। उसमें हम कोई कॉपी किताब कुछ नहीं रखते। हमारा दीदी को साफ कहा हुआ है कि बच्चों को उसमें कॉपी किताब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उनसे बात करनी है और आपस में दोनों से क्लास के बच्चों को कराना है। आप मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि 5वीं से लेकर 10वीं तक किसी क्लास के बच्चे को इंग्लिश में खड़ा करके बात करा लो। ठीक है, अभी थोड़ा सा उनका वो एक बात करने का लहजा भाई साहब बता रहे थे कि वो नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा। और आपकी शुभकामनाएं ऐसी बनी रहेगी। नए एडमिशन शुरू होने गए हैं। बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों का एडमिशन शुरू कर दिया है। अपने परिवार में, घर में बच्चे हैं, उनको आप लाइए और हम लोग जैसा भी होगा उनका सहयोग करेंगे। और जय भारत, जय हिंद। समिति के अध्यक्ष और ये जो सुजानगढ़ में जितने विद्या मंदिर खड़े हुए हैं उन सबके संरक्षक है और हमें तैयार करने वाले भी। हाँ बोलना प्रदर्शनी के कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथिगण, माताएं बहनों, भैया बहनों, वर्तमान का युग है वो विज्ञान का युग है और इसके लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के ही बड़ा विश्वास के साथ कार्य किया जा सकता है। आप सब लोगों ने ये सारा किया, देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और मैं तो चाहता हूँ कि कार्यक्रम और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से और करें, ज़्यादा उचित रहेगा। आप सब लोग बता दें। आपको एक बार यही रहना बच्चों सुई पड़ी है पसीना। और ये क्या ये देखो भैया, ये कागज के बोल से बनाया गया है। अच्छा, क्या चीज है ये? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी है बच्चों।